Dignitary on the dais, Dr. Kavita Gaur, Dean First Year. Dignitary of the dais, Dr. Anjali Kadam, High Engineering Coordinator. Dr. Vijaya Balpande, Head CSC and Artificial Intelligence. Dr. Ajay Mende, Head Electrical Engineering. Dr. Gulfam Patan, Head Civil Engineering. Dr. Ajit Sav, Head Training and Placement Department. Dr. Gayatri Wankhede, everyone knows, Admission in Charge, Assistant Registrar, Aparna Kature ma'am, and my dear student friends, very good afternoon to all. Again, this is not a voice of my student. Very good afternoon to all. Very good afternoon to all. Right, I once again welcome you all to Priyadarshini JL College of Engineering campus. You witnessed the very lush green campus. And friends, now first I congratulate you all to become a member of family called Priyadarshini. Yes, Priyadarshini is known for excellence in technical education and promise to uphold the spirit of professionalism to serve the humanity. Yes, the main purpose of Priyadarshini is to create the good engineers, at the time the good human beings. हमारा main purpose ही वो है, and for that Priyadarshini is known. Priyadarshini comes under the banner of Lokmanya Tilak Jan Kalyan Shikshan Sanstha, whose founder member, whose chairman is Dr. Satish Chaturvedi. He himself is a learned partner, postgraduate in 3 subjects, LLB, PhD and DLET. DLET is the highest degree of art and commerce side. उसके बाद कुछ डिग्री नहीं है, जैसे ABCD Z पे खत्म होता है, वैसे आर्ट साइंस की अगर कोई डिग्री है, so it's end at DLET. So our honorable chairman itself is a very learned person. He has a visionary, and that's why in our college it's a very good library, very good infrastructure, huge lawn, huge corridor. हमने एसी बंद करके रखा है, ठंडी है, but such a nice seminar hall. Yes. So friends, I once again congratulate you all to become the member of Priyadarshini. Now, regarding Priyadarshini College of Engineering or Priyadarshini or Lokmanya Tilak Jan Kalyan Shikshan Sanstha, we have 29 institutes. Out of that, 5 engineering are in Nagpur. उसमें 5 में से 3 अभी merge हुए हैं. One is in Mumbai, and apart from engineering, architecture college, polytechnic, ITIA, pharmacy, D.Ed, B.Ed, education, various school. In short, right from KG to PG, not PG, right from KG to doctorate, all quality education is available in Priyadarshini group. Yes. So friends, being a principal, I assured you and your parents, now after, no need to worry. We all together, मैडम ने बहुत अच्छा बताया, we have very strong mentoring scheme. हमारे यहाँ टीचर गार्डियन स्कीम है. आपको जैसे पेरेंट्स घर में होते हैं, वैसे यहाँ पे टीचर्स आपको गार्डियन रहेंगे. Yes, we all together, yourself, your parents and our teacher. Yes, we all together definitely work hard for your success. But friends, for success, 75% attendance is compulsory. Yes. Performance in unit test, sectional examination is very much compulsory. And apart from hard work तो लगेगा ही success के लिए. Yes. But apart from hard work, self-discipline, honesty is very much required. Yes, we require good engineer, at the time we require good human being. मैं मेरे civil engineering के language में हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरे टीचर मेरे स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाएंगे, वो अच्छा फूल है, अच्छा बांध बांधेंगे, बट मजा तो तब आएगा जब मेरे स्टूडेंट किसी के बहते हुए आंसू को रोक सके, ऐसा बांध बांधेंगे. Yes, we want such good human being in our college. Right? Again, what rightly madam said, yes, we believe in 360-degree development of our student. Yes, for that, academic and extracurricular activity must go hand in hand. And for that, always, academic तो होगा ही. If you know the results of Priyadarshini JL College of Engineering, civil और computer हम पिछले 5 साल से फर्स्ट रैंक पे है, इलेक्ट्रिकल ETC at second rank. Yes, we believe in 360-degree development of a student, and for that, academic and extracurricular activity must go hand in hand. And for that, always there is a Saraswati Puja, Ganesh Puja, sports activity, group discussion, site visits, industrial visits. All these are the part of curriculum. Yes, ये तो आपको by default लेना ही लेना है. And again, I appeal to all, if you have knowledge but you don't express your knowledge, no use of that knowledge, for that stage daring is must, public speaking is must. ये बहुत जरूरी है. Clear? So whenever you get chance, definitely take participation in that activity. Whenever you get the platform, avail that platform, ताकि तभी आपका skill बढ़ेगा. Yes.
कोई भी स्किल आउटडेटेड हो सकता है, बट कन्विक्शन स्किल नेवर बी आउटडेटेड, ये आपको लगेगा ही लगेगा। क्लियर? क्लियर? यस। अगेन फ्रेंड्स, सब स्टूडेंट आज ऑन, यहाँ पे आप जो स्टूडेंट है ऑल दे आर फ्रॉम नागपुर, बट मैक्सिमम स्टूडेंट दिस टाइम दे आर फ्रॉम आउट ऑफ नागपुर। सो आई वांट टू स्पेशली convey one message to that student. Friends, hereafter your parents is not with you to wake up to 8, आपको बोलेंगे नहीं बेटा उठ जा, कॉलेज टाइम है, बेटा उठ जा, खाना टाइम। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बट फ्रेंड्स, यू आर इन यूथ वी एग्री, यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ, आपको एंजॉय भी करना है, बट रिमेंबर यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। एंजॉयमेंट और पढ़ाई ये आपको बैलेंस करते आनी चाहिए, तभी लाइफ में सक्सेस मिलेगा। एंड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है एंड बी ऑनेस्ट विद दैट टाइम टेबल, वॉट एवर मे बी, जो भी टाइम टेबल आप बनाओगे, बट बी ऑनेस्ट विद दैट टाइम टेबल, दैट इज द ओनली सक्सेस मंत्र। वही सक्सेस मंत्र है। टाइम टेबल आपका रहेगा, आप उसको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस होगे। मैंने बहुत से अलग अलग स्कीम देखी, एजुकेशन कोई स्कीम नहीं है, बट ऐसे कोई मैंने व्हाट ऐसे रिजल्ट नहीं देखा कि आप 4 साल सिर्फ एफर्ट दिए और आपका आगे का कंप्लीट लाइफ अच्छा जाएगा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग में पॉसिबल है। 4 साल आपने पढ़ाई भी की, एकेडमिक इंडस्ट्री सब खुद का ग्रोथ भी किया, बट आगे का कंप्लीट आपके 100 साल उसके वजह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। दैट इज द ओनली हैपन इन इंजीनियरिंग। सो गिव योर 100%। और सब जन बोलते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि कागज अपने किस्मत पे उड़ता है, बट पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है। आपने सुना होगा फेमस डायलॉग क्या है, बाबा रणछोड़ दास क्या बोलते हैं रणछोड़ दास, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आ जाएगी पीछे से, डोंट वरी। सो काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। नाउ जो लाइफ का मेन पार्ट था 12th क्रूशियल ईयर, जहां से आपको आइडेंटिटी मिलती है। आफ्टर 12th सम स्टूडेंट वेंट एंटर्ड इन लॉ, सम स्टूडेंट कम फॉर इंजीनियरिंग, सम फॉर मेडिकल, सम फॉर एनी अदर प्रोफेशन। इट्स गिव्स द प्रोफेशनल आइडेंटिटी। इसके पहले मैं अभय शेंडे था, आज मैं इंजीनियर अभय शेंडे हूँ। स्पेशली आई एम ए सिविल इंजीनियर अभय शेंडे। जो फील्ड आप सिलेक्ट करते हो उसका नॉलेज आपको नहीं रहेगा, रोज आपका इंसल्ट होगा डेली। सो ऐसा भी हम नहीं चाहेंगे कि जो फील्ड आपने सिलेक्ट किए उसको 100% आपको देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th द क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ आपने ऑनलाइन से क्लियर किया है। यू आर हैबिचुअल विद ऑनलाइन। श्रुति मैडम ने बताए ऑल अवेयर रिगार्डिंग द पैंडेमिक एंड ऑल, बट मुश्किल आई थी तो हमने रास्ता निकाला। हमने पैंडेमिक से क्लियर किया, अगस्त में चालू नहीं हुआ, बट फरवरी में या जनवरी या दिसंबर में कॉलेज चालू हुआ, बट चालू हुआ है। बट एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, जो आपको ऑनलाइन की आदत लगी है उसको हमको मेंटेन रखना है। एंड फॉर दैट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एंड यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट, आपको अभी बीई की डिग्री नहीं बीटेक की डिग्री मिलेगी। सेकेंड, नाउ आई गिव द वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल। सपोज एनी स्टूडेंट टुक एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ली है। डेफिनेटली इन फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर ऑल कोर्सेज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। 4 साल आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की डिग्री भी मिलेगी आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी से। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? क्या ब्यूटी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन लेने के बाद 4 साल में आपको 160 क्रेडिट होते हैं मार्कशीट पे, अगर आप काउंट करोगे वो लेने से आपको डिग्री मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की। बट कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उसको सिविल में इंटरेस्ट है, उसको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम डांस उसको डांस में इंटरेस्ट है, उसमें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो IITs 6 IITs ने मिलकर NPTEL, आपकी पहली असाइनमेंट है, मैं बाद में बताऊंगा, NPTEL के कोर्सेज अवेलेबल है। आप सेकंड ईयर से वो कोर्सेज को रजिस्टर करते हो। बहुत से स्टूडेंट का सपना होगा कि हम IIT में पढ़े, हमारा वो सपना पूरा नहीं हुआ, वो सपना आज हमारे कॉलेज से पूरा होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर में आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे या सिविल में इंटरेस्ट है, और आप 18 क्रेडिट
एनपीटीएल से लेते हो 18 क्रेडिट में, आप फॉर्म भरते हो एनपीटीएल का, आईआईटीज के प्रोफेसर आपको सिखाएंगे, वही आपको असाइनमेंट देंगे, वही आपके एग्जाम लेंगे, वही आपको सर्टिफिकेट देंगे, और आप फाइनल ईयर के पहले अगर वो सर्टिफिकेट हमको लाके देते हो, 2-3 पेपर्स रहेंगे उसमें, आपको इट डिपेंड्स, और आपको 18 या 20 क्रेडिट मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को। आपने कंप्यूटर में अगर वो क्रेडिट लिए तो आपको मेजर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिलेगी और माइनर डिग्री कंप्यूटर साइंस की मिलेगी। व्हाट इज द ब्यूटी? मेजर डिग्री आपको ईटीसी की मिलेगी, माइनर डिग्री आपको कंप्यूटर की मिलेगी। आपने सिविल के अगर क्रेडिट लिए तो मेजर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की, माइनर डिग्री सिविल की। आपको डांस में इंटरेस्ट है, मेजर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनर डिग्री इन डांस। यस, नाउ इट्स योर फर्स्ट असाइनमेंट गिवन बाय प्रिंसिपल। 4 दिन का टाइम है, 4 दिन के अंदर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एनपीटीएल? हु रन्स एनपीटीएल? हाउ मेनी कोर्सेज अवेलेबल है एनपीटीएल एंड कौन से कोर्सेज अवेलेबल से, क्या फी है, ये सब आपको सर्च करके आपके टीचर्स को देना है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल होने से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं आपके क्लास टीचर्स और आपके टीचर गार्डियन से पता कर लूंगा। तो व्हाट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट? एनपीटीईएल का लॉन्ग फॉर्म सिलेक्ट करना, उसमें क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो देखना, फीस देखना, और आपको कौन से डोमेन में या कौन सी आपको माइनर डिग्री चाहिए ये भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए टाइम है आपके पास, बट एनपीटीईएल आपको 4 दिन के अंदर ही करना है। क्लियर? अगेन द ब्यूटी अनदर। नाउ इफ यू टॉकिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डेफिनेटली वी हैव सम लिमिटेशंस। वी हैव यूनिवर्सिटी सिलेबस, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। नेक्स्ट ईयर हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस के लिए जा रहा है, वी ऑलरेडी अप्लाइड। इन ऑटोनॉमी देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द सिलेबस, बट आरटीएम का सिलेबस अच्छा ही है, नो डाउट। बट आरटीएम के सिलेबस के ऊपर अगर आपको ईटीसी का कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, आप ईटीसी के स्टूडेंट हो और आप ईटीसी के एनपीटीएल के कोर्सेज करते हो, उसमें 18 क्रेडिट्स लेते हो एक्स्ट्रा, तो आपको ऑनर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिलेगी। यस, दैट इज द ब्यूटी। आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये बहुत, एंड वी कैन गो इन एनी फील्ड विद दिस, राइट? सो यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, एनपीटीएल की अपॉर्चुनिटी आप कैच करो। ऑनर्स डिग्री के लिए आप जा सकते हो, यू कैन गो फॉर माइनर डिग्री ऑल्सो। सो आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। दिस इज फॉर दिस बैच ओनली, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो ऐसा बोल ही नहीं सकते सिविल के स्टूडेंट की सर मुझे कंप्यूटर पढ़ना था, यू हैव चांस, या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकते सर मुझे सिविल पढ़ना था, यू हैव अगेन डेफिनेटली यू हैव अनदर चांस फॉर दैट, राइट? सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ऑल दिस मेजर्स, माइनर देन ऑनर्स डिग्री, ये आपके लिए बनी है, आपको उसका कंप्लीट एडवांटेज लेना है। एंड विद दिस I once again welcome you all to Priyadarshini JL College of Engineering campus. Now again I want from your side, कितने स्टूडेंट ने सेकंड डोज लिया है वैक्सीनेशन का? प्लीज रेज योर हैंड्स। सेकंड डोज यू कंप्लीटेड? गुड। एंड फर्स्ट डोज? Okay, very soon. Again, first we take the review of all students. At first, you classes start with online, but once I feel कि all my students took the first and second dose, उनका complete हुआ है, तो definitely हम offline मोड के साथ जाएंगे अभी, लेकिन आपको online classes होंगे क्योंकि बाकी सब डाटा हमारे पास आने का है। Clear? So whenever you get problem in college, you have to meet your teacher guardian. आपको आपके टीचर गार्डियन को मिलना है, क्लास टीचर्स को मिलना है। You can meet any time to them. And again, remember the minor scheme. Take the maximum benefit of that. And with this, I wish you all the best for your future. और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच।